Now I'm going to record. Now listen carefully. First of all, you have read about weekly markets. In the previous class, I've told you about weekly market and about shops in the neighborhood. Now today I'm going to tell you about shopping complex. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आपने देखे होंगे जैसे वी मार्ट विशाल मार्ट ये सब ठीक है तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ शॉप्स सेलिंग डिफरेंट गुड्स एट डिफरेंट फ्लोर्स इन द सेम बिल्डिंग that is known as shopping complex or mall. And mostly these buildings are air conditioned. Here, both branded and non-branded goods are sold. Both branded and non-branded goods are available. Branded goods are expensive, whereas non-branded goods, they are cheap. So people, rich people can afford branded goods, whereas there are some people who cannot afford branded goods. And for them, there are non-branded goods also in these malls. Shopping complex, there are, listen again about shopping complex, there are different kinds of shops selling different goods at different floors in the same building. And here, these shops sell both branded and non-branded goods. Everyone cannot afford branded goods. And for them, there are non-branded goods also. These are mostly air-conditioned buildings. आप मम्मा पापा के साथ इन मॉल्स में गए हो आपने नोटिस किया होगा ये एयर कंडीशन होती हैं तो नेक्स्ट इज शॉप्स एवरीवेयर शॉप्स एवरीवेयर अपना फोन उठाओ तो उसमें भी एक आपको शॉप आपके फोन में भी यू कैन बाय प्रोडक्ट ऑनलाइन दीज डेज we can buy things through Amazon and by using Flipkart we can buy things online तो फोन में ही मार्केट है हमारे and during corona period these days people mostly prefer to buy things online they do not want to go to the areas where there is so much rush crowded areas में वो नहीं चाहते So these days, mostly people prefer to buy things online. So there are shops everywhere. We can buy products online. And next is chain of market. Chain of market. How the things reach to the traders. How they reach to the consumers. All the things. So there is a chain. Things are produced on a farmland or in factory or sometimes at home. And from the farmland or factory or from home, wholesalers, wholesale traders buy the products. We cannot get things directly from the factory or from the farmland because producers, they do not show their interest to sell their things in a less quantity. Because when we want to buy anything, we will buy it in a less quantity. Whereas wholesale traders, they buy things in huge quantity. So that's why producers, they prefer to sell their things to the wholesale traders, not to us. We cannot get things directly from these factories, farmlands, we cannot get.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर प्रोड्यूसर्स हु प्रोड्यूस द गुड्स। अब आप देखो कैसे वो चीज एक शुगर को लेके चलते हैं। चलो शुगर कैसे वो फार्मलैंड से हमारे तक आते आते कितनी उसने स्टेजेस कवर की और वो हमारे तक आते आते रेट कैसे अप हो गया। नाउ लिसन केयरफुली। फॉर एग्जांपल शुगर फार्मलैंड से आई, ठीक, शुगर केन आया। आप इमेजिन करो फगवाड़ा की शुगर मिल, वहाँ पे वो मिल में शुगर केन गया, शुगर बनी एंड देन थ्रू ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू डिफरेंट एरियाज में वो सप्लाई हो गई। होलसेल ट्रेडर्स उन्होंने इकट्ठा ही कितने कितने केजेस क्विंटल्स में वो उठाना सामान एंड स्टोर द स्टॉक इन देयर गोडाउन्स। होलसेल ट्रेडर्स स्टोर कर लेते हैं गुड्स को अपने गोडाउन्स में एंड फ्रॉम देयर ट्रेडर्स ऑफ वीकली मार्केट और शॉपकीपर्स रिटेलर्स जो भी होते हैं दे बाय गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अभी हम बात कर रहे हैं शुगर की। चलो शुगर जैसे एक होलसेलर के पास आई, देन वहां से लेके आएंगे दूसरे ट्रेडर्स, ठीक है, ग्रोसरी शॉप वाले जो भी ट्रेडर्स हैं वो लेके आएंगे। अब फार्मलैंड से जब शुगर केन आया तो दैट वाज चीप। शुगर मिल में जब वो प्रोसेसिंग हो गया, सब कुछ रेडी हो गई, तो इमेजिन वो पड़ी, हम इमेजिन करते हैं कि वो उनको सारा कुछ करने के बाद आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन वो उनको पड़ गई 20 रुपीज पर केजी। होलसेलर के पास आई, होलसेलर आल्सो कीप हिज प्रॉफिट वाइल सेलिंग इट टू रिटेलर, जिसको भी उसने देनी है डिफरेंट ट्रेडर्स को, एंड ट्रेडर्स आल्सो कीप देयर प्रॉफिट while selling it and when this sugar reach to us, उसका प्राइस इमेजिन, जैसे मुझे अभी ध्यान में तो नहीं है, 40 रुपीज समझ लो, डबल हो गया रेट हमारे तक आते आते, क्योंकि इट कवर्स डिफरेंट स्टेजेस कवर करके वो हमारे तक आई, दैट्स वाई वो हमें थोड़ी महंगी मिली। So chain of market we are doing, first of all goods are produced in a farmland, factory or at home, then wholesalers buy these things and store them in their godowns. There are special areas for wholesale market in the city. For example, in Jalandhar, Atari Bazaar. आप अटारी बाजार कभी गए होगे, नोट अभी नहीं मैं कह रही, अब जाना है। आप पहले मम्मा के साथ कभी गए होगे तो वो होलसेल मार्केट है जलंधर की, अटारी बाजार, वहाँ पे बहुत रश होता है, अटारी बाजार, ठीक है। वहाँ से आप अगर इमेजिन पर्ल, मुझे पर्ल जैसे दिख रही है, पर्ल गई, इसने टी शर्ट्स लेनी है, ठीक है, तो वो होलसेलर जो है ना वो इसे पैकेट देगा, एक पैकेट मिलेगा इससे, शी हैज़ टू बाय दैट। कलर चॉइस नहीं होएगी इसकी, डिज़ाइन चॉइस करना ये नहीं कर पाएगी, उसने इसको खोल के नहीं देना कि एक टी शर्ट ले लो वहाँ से, नो, इसको इकट्ठी लेनी पड़ेगी, बाद में जो मर्जी कलर निकले। वेयर एज फ्रॉम रिटेलर आप अपनी चॉइस का कलर लेते हो, और अगर आपको एक टी शर्ट चाहिए तो आप एक ही खरीदोगे अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जो भी आपको कलर चाहिए, जो भी डिज़ाइन चाहिए। So this is the difference between wholesaler and retailer. From retailer we can get things according to our choice and जितनी हमें चाहिए according to our need also. Whereas from retailer no choice, उसने हमारी choice को bother नहीं करना and वो हमें less quantity में चीज़ नहीं देगा। आप पेन लेने गए हो, आपको वहाँ से पैकेट लेना पड़ेगा, पैकेट लेने पड़ेंगे। वेराज फ्रॉम रिटेलर आप अपनी मर्जी के, अंकल ये वाला डिज़ाइन का दे दो, ये वाला दे दो, ये वाला दे दो, आप ऐसे लेते हो। फ्रॉम होलसेलर नो चॉइस, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ नहीं ले सकते, वो आपको जो उसका पैकिंग है वही लेना है, वैसे तो वो देते ही नहीं है, इंटरेस्ट ही शो करते हैं हमें देने में। तो नेक्स्ट सेपरेट एरियाज होते हैं फॉर होलसेल मार्केट एंड इन जलंधर इट इज अटारी बाजार होलसेल मार्केट
एंड इन होलसेल मार्केट बाइंग एंड सेलिंग दोनों ही किस में होती है बताओ? बिटवीन ट्रेडर्स, ट्रेडर्स में होती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल होलसेलर बाय द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फैक्ट्री and then store it in his godown, and from that retailer or trader of weekly market or different traders, they buy the things according to their need. In this way we can say buying and selling in weekly market, in wholesale market is held between, किस में होती है? Buying and selling is held between both ट्रेडर्स, दोनों में ही, ट्रेडर्स में ही होती है। बाइंग एंड सेलिंग इज डन बिटवीन ट्रेडर्स इन होलसेल मार्केट। बाइंग एंड सेलिंग ट्रेडर्स में ही रहती है, होलसेल ट्रेडर एंड ट्रेडर्स ऑफ वीकली मार्केट और शॉपकीपर, तो इन्हीं में रहती है बाइंग एंड सेलिंग इन होलसेल मार्केट्स। सो दिस इज अबाउट होलसेल मार्केट। देन रिटेलर, after keeping their profit, retailer sell their things and we get things or we can buy things from the retailer according to our choice and according to जो भी हमें, जितने हमें क्वांटिटी में चाहिए, according to the our need or choice we can get things from retailer. So this is about chain of market. First of all, homelands, factories, then wholesale traders, store किया अपने godowns में, then different traders, they visit the wholesaler and buy things, and then we people, consumers, we get things from the retailers according to our choice, according to our need. So this is about the chain of market. अब हम तक आते आते कितनी स्टेजेस कवर की उसने, ट्रांसपोर्टेशन भी आई बीच में, होलसेलर गोडाउन तक चीज लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी तो आई, उसे वो भी तो कॉस्ट पड़ी, और हर स्टेज पे हर एक ने अपना प्रॉफिट रखना। इमेजिन जयंत इज द फैक्ट्री ओनर, जयंत ने पेंसिल बॉक्सेस बनाए अपनी फैक्ट्री में। सय्यम इज द होलसेल ट्रेडर, ह्यूज क्वांटिटी में वो पेंसिल बॉक्सेस उठाए एंड स्टोर देम इन हिज गोडाउन। एंड वनिका, वनिका इज द रिटेलर, ये गई सय्यम के पास एंड बाय द थिंग्स अकॉर्डिंग to her choice or need and अपनी शॉप में ले आई। अब बाइंग एंड सेलिंग इन होलसेल मार्केट इज डन बिटवीन, अपने आप सोचो, वनिका भी ट्रेडर है एंड सय्यम भी, इज डन बिटवीन बोथ, दोनों ही ट्रेडर्स हैं, दोनों में हुई बाइंग एंड सेलिंग। अब अवधि अगर जाती है सय्यम के पास तो सय्यम उसे चॉइस नहीं देगा, पैकेट ही देगा उसे कि यही लेना पड़ेगा, आई विल नॉट शो यू, अब मैं पैकेट खोल के भी नहीं दूंगा। मीन्स अवधि अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग थिंग किससे नहीं ले सकती? सय्यम से। बट अब अवधि गई वनिका के पास, तो वनिका से अवधि ने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चीज ली, अकॉर्डिंग टू हर नीड, जितनी उसे चाहिए, जितनी उसको चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, अकॉर्डिंग टू दैट अवधि कैन गेट थिंग्स फ्रॉम वनिका, नॉट फ्रॉम सय्यम, बिकॉज सय्यम इज द होलसेल ट्रेडर, वनिका इज द रिटेलर। अब एक मिनट, फार्मलैंड से जब सय्यम लाया, पहले तो जयंत ने प्रॉफिट रखा, जयंत ने भी तो अपने लेबरर्स का वो सारा खर्चा निकालना है। अब जयंत को हो सकता है वो चीज पेंसिल बॉक्स जो है वो 10 रुपीज का पड़ा हो, सय्यम को 15 का पड़ा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह सब कुछ डाल के सय्यम को 15 का, वनिका को सय्यम ने 20 का दिया, ठीक है, उसने भी तो प्रॉफिट रखना। अब वनिका ने अपना प्रॉफिट रखना, वनिका ने वही 20 को 40 करना है। ज्यादा प्रॉफिट रिटेलर रखते हैं क्योंकि कई बार यहाँ पे बार्गेनिंग भी होती है। अब वही 10 रुपीज वाली चीज अवधि तक आते आते 40 की हो गई।
सो दिस इज अबाउट द चेन ऑफ मार्केट। ठीक है, हम ना तो फैक्ट्री से डायरेक्ट ले सकते हैं गुड, ना ही हम होलसेल मार्केट से। वी कैन गेट थिंग्स फ्रॉम द होलसेल मार्केट, समटाइम्स वी गेट, आपके मम्मा लाते भी होंगे, ये नहीं मैं कहती नहीं लाते, बट वो ह्यूज क्वांटिटी में लेनी पड़ती है। फिर ये नहीं है कि अपनी चॉइस अपनी उसके अकॉर्डिंग आप नहीं ले सकते। whereas from retailer you can get things according to your choice and जितनी आपको चाहिए। So this is about chain of market. Now next topic is equality. Is there equality in these markets? All are treated equally, all the traders are treated equally in these markets. So listen carefully. I have told you before that in shopping complexes they sell both branded and non-branded things. And in markets these days there are various products which are branded and which are non-branded. People feel confident while buying branded products. ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को खरीदते वक्त कहीं ना कहीं हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, हमें लगता है कि गुड क्वालिटी होएगी, अच्छा होएगा, हम रेट भी बॉदर नहीं करते। हमारे पास दो चीज़ें पड़ी हैं, वन इज़ ब्रांडेड, वन इज़ नॉन ब्रांडेड। चलो एक एग्जांपल लेते हैं पिकल की। पिकल, एक पिकल किसी कंपनी का है, उसकी एडवर्टाइजमेंट आती है, वन पिकल इज कृष कुंद्रा ऑफ 10th C, not 10th class. So listen carefully, equality in the market. तो ब्रांडेड गुड्स, मैंने बोला हम पिकल के एग्जांपल लेते हैं। वन पिकल इज फ्रॉम कंपनी, हम किसी भी कंपनी का लेते हैं और उसकी एडवर्टाइजमेंट है, एंड अदर इज ऑफ लोकल ट्रेडर, दूसरा एक लोकल ट्रेडर का है। अब while buying we will prefer the pickle which is एडवर्टाइज कंपनी, जिस कंपनी ने उसकी एडवर्टाइजमेंट दी हुई है, हम वो ब्रांडेड जो होएगा हम उसको लेंगे। हम लोकल ट्रेडर का पिकल नहीं बाय करेंगे, रेट में कितना फर्क चाहे हो, बिकॉज मैंने पहले ही बोला वी फील कॉन्फिडेंट वाइल बाइंग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। अब हो सकता है लोकल ट्रेडर का प्रोडक्ट जो है, पिकल जो है वो फ्रेश हो। एक साइड में फिर ले रही हूँ जयंत एंड संयम। जयंत इज एक, इसने अपने पिकल की एडवर्टाइजमेंट दी, ये रिच ट्रेडर है एंड एडवर्टाइज द प्रोडक्ट, इसने एडवर्टाइजमेंट दे दी। अफोर्ड कर सकता है तभी एडवर्टाइजमेंट देगा ना, एडवर्टाइजमेंट देना काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, तो एडवर्टाइजमेंट कर दी। संयम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाया, इसके पास इतना अमाउंट नहीं है, पिकल लेके आया मार्केट में बट एडवर्टाइज नहीं कर पाया उसकी। अब आप लोग खरीदते वक्त जयंत वाला प्रोडक्ट खरीदोगे, हो सकता है जयंत वाला प्रोडक्ट पुरानी डेट का हो, कुछ हो उसमें गड़बड़ हो सकता है संयम वाला प्रोडक्ट बिल्कुल फ्रेश हो, बट हम कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। तो लॉस किसको हुआ? संयम, बिकॉज इसने बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस स्टार्ट किया एंड can't give the advertisement, that's why there is no demand of his product in the market. People do not want to buy, do not prefer to buy the pickle which is made by Sayyam. They prefer to buy the pickle which is made by the company of Jayant only because of advertisement के कारण। एक साइड टू करीम लेते हैं हम, एक साइड हम लेते हैं फेयर एंड लवली और एक साइड हम सिंपल लेते हैं। अब फेयर एंड लवली के एडवर्टाइजमेंट इमेजिन आलिया भट्ट लेके आ रही है, तो वानिका फील कॉन्फिडेंट वाइल बाइंग फेयर एंड लवली, अवधि फील कॉन्फिडेंट, सब्जी फील कॉन्फिडेंट वाइल बाइंग फेयर एंड लवली, बिकॉज इन्होंने कहना मम्मा एडवर्टाइजमेंट इज गिवन बाय माय फेवरेट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, दैट्स व्हाई आई वांट टू बाय दिस। दूसरी साइड दूसरी है करीम, आप बिल्कुल नहीं बाय करोगे, आपको होना पता नहीं ये कोई लोकल कंपनी की है, हो सकता है ये अच्छी ना हो। इट मीन्स मार्केट में प्रॉब्लम्स किनको आती हैं? वो लोग जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते,
डिमांड ऑफ उनकी गुड्स की कहीं ना कहीं लेस डिमांड रहती है, डिमांड ऑफ देयर प्रोडक्ट इज लेस इन द मार्केट. Mediocre families also prefer to buy branded products. They do not want to buy things which are non-branded. तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे रिच तो करते ही ब्रांडेड है, मीडियोकर फैमिलीज भी प्रेफर टू बाय ब्रांडेड प्रोडक्ट्स. तो वेयर एज कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि जो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है ना उनके ट्रेडर्स को प्रॉब्लम्स आती हैं. दे हैव टू फेस वेरियस प्रॉब्लम्स इन द मार्केट. सो इन दिस वी कैन से देयर इज नो इक्वालिटी. इक्वालिटी नहीं है मार्केट में, सिर्फ उसी की चीज़ की डिमांड है जिसकी एडवर्टाइजमेंट है. तो with this chapter is completed. We will discuss question answers later. First of all, I will give choice to you. Try to do question answers of this lesson. Try to find out the question answers of this lesson. And in next week, on Friday, I will discuss that question answers exercises with you. You people firstly give answers. Then we will discuss and then you will do these topics in your, these question answers in your homework copy. Quick recap of this chapter. First of all, what is market? Now listen carefully. Market is a place where buyers and sellers meet. Listen carefully. अगर कुछ आपके क्लास लेट ज्वाइन किया तो प्लीज बच्चे listen carefully. Where buyers and sellers meet. There are different kinds of markets. First is weekly market. Weekly market held on specific day of the week. In these markets, traders set up their shops in the morning and wind them up in the evening. And on the next day, they will have to set up their shop in different areas. Here, traders sell their goods at less profit. And in these markets, people can do bargaining also, because there are different shops selling same goods. So that's why इन वीकली मार्केट ट्रेडर्स जो हैं उन्हें कई बार लॉस भी होता है. हैव टू सेल देयर गुड्स एट लेस प्रॉफिट. एंड बायर्स देयर इज नो नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, because they can get different kinds of goods they need in the same market. Next is shops in the neighborhood. There are various shops in your neighborhood. And there are two types of shops, permanent, non-permanent. Non-permanent are stalls on roadsides such as fruit vendors, vegetable hawkers, and shops in the neighborhood जो होती है ना, mostly the shopkeepers know you, वो आपको जानते होते हैं. You can get things on credit from them, and for that जो buyers होते हैं they will pay later. They can get things from them and they will pay later. So this is about the shops in the neighborhood. Next, in this chapter we have done about shopping complex, malls, V-Mart, विशाल मार्ट. ठीक है, तो इनके बारे में देयर आर, आप दिमाग में लेके आओ उसको, वेरियस शॉप्स सेलिंग डिफरेंट गुड्स एट डिफरेंट फ्लोर्स इन द सेम बिल्डिंग. These buildings are mostly air conditioned, and these malls are selling both branded and non-branded products. People buy the products according to their pocket. जो उनको suitable है, they buy that. Branded or non-branded depends upon the wish of the people. Next, in this chapter we have read about shops everywhere. अपना फोन खोलो, देयर इज शॉप. ये ना हो अभी अभी शॉपिंग करके बैठ जाना और बाद में मम्मा को बिल आ जाए इतना. बच्चा शॉपिंग करके बैठा है अमेजोन से, मैंने ये प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर दिए, और बाद में मम्मा से थप्पड़ खाते हो कि किसने किससे पूछ के ऑर्डर किए थे. तो शॉप्स फ़ोन में भी हैं. फ़ोन उठाओ, ऑर्डर करो. ड्यूरिंग कोरोना पीरियड मैंने अभी बताया था, पीपल प्रेफर टू बाय थिंग्स ऑनलाइन. इन दिनों आप ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करते हो. वैसे भी लोग रश क्राउडेड एरिया में नहीं जाना प्रेफर करते कई बार, तो दे बाय थिंग्स ऑनलाइन. अच्छी क्वालिटी की होती हैं गुड्स
एंड डिलीवरी भी टाइम पे होती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. पीपल कैन बाय थिंग्स ऑनलाइन, दे प्रेफर टू बाय थिंग्स ऑनलाइन. देर आर डिफरेंट कह सकते हो आप कंपनीज दैट डील इन द ऑनलाइन मार्केट. अमेजोन है, मंत्रा है ना. तो इस वे से हम गुड्स बाय कर सकते हैं. तो वी कैन ऑल्सो सेल, हम बेच भी सकते हैं. ठीक है ना. तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट्स, शॉप्स एवरीवेयर, हमारे फोन में ही शॉप्स हैं. तो नेक्स्ट फिर मैंने कहा चेन ऑफ मार्केट. अब चेन कैसे बनी है? चेन कहाँ गुड्स बनी, कहाँ पहुंच गई? हु प्रोड्यूस गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द फार्म लैंड, in factories or at home. Then from the factory or from the farmland, wholesale traders buy the products in huge quantity. वो लेके आते हैं huge quantity में. And then they store them in their godowns. उन्हें अपने गोडाउन्स में स्टोर करते हैं. आप जाओ अटारी बाजार देखो, अब भी नहीं जाना, ये ठीक हो जाए सब कुछ, स्कूल आना शुरू हो जाओ, फिर मार्केट देख के आना अटारी बाजार. तो वहां देखना कैसे स्टोर की हुई है प्लास्टिक के गुड्स, देखना कितनी स्टोर करके रखी होती हैं. दे स्टोर देयर गुड्स इन दीज मार्केट्स. होलसेल ट्रेडर्स स्टोर करते हैं. इट मीन्स होलसेल ट्रेडर्स को इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज दे हैव टू बाय प्रोडक्ट फ्रॉम द फैक्ट्री इन ह्यूज क्वांटिटी. अब एक मिनट, होलसेलर के पास पैसा ज़्यादा होना चाहिए. एक रिटेलर तो लिमिटेड लाएगा, शॉपकीपर. होलसेलर ने स्टॉक करना है, उसके बाद उसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है. होलसेलर वही होएगा जो रिच होएगा और उसको स्टॉक करना है, उसको इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा. तो देयर आर डिफरेंट एरियाज इन द सिटी फॉर होलसेल मार्केट. जलंधर की आप दिमाग में रखो, अटारी बाजार वाला एरिया. हियर जो होलसेलर है ना, दे स्टोर देयर गुड्स and from these godowns, shopkeepers, traders of weekly market, they buy the things according to their need. जितना उनको चाहिए उतना वो लेके आते हैं. We people can also, we cannot get things directly from the market. नहीं ले सकते, वो नहीं देंगे हमें. We can get things from the wholesale market, but no, they sell things and they do not show us different colors. We cannot get things according to our choice from these market. हम अपनी choice के according नहीं ले सकते. We have to buy, जैसे हमें एक चाहिए, we have to buy goods in huge quantity. We cannot buy things according to our choice and according to our need from the wholesale market. तो वही पीपल फील कंफर्टेबल इन रिटेल मार्केट्स. रिटेल मार्केट्स में हम प्रेफर करते हैं जाना, बिकॉज इन रिटेल मार्केट्स वी गेट अवर थिंग्स अकॉर्डिंग टू अवर चॉइस एंड अकॉर्डिंग टू अवर नीड. आप एक टी शर्ट खरीदने के लिए उसकी 10 खुलवा दो शॉपकीपर की, वो दिखाएगा. होलसेलर को कह के दिखाओ, उसने कभी नहीं दिखाना. उसने कहना ये पैकेट पड़ा, आप उठाओ, घर जाके कलर देखना कौन से आते हैं इसमें. तो वही feel comfortable to buy things from the retail markets. जैसे आपके घर के बाहर शॉप है नेबरहुड में, दैट इज रिटेलर होंगे वो अंकल आपके जो भी हैं. तो we prefer to buy things from the retail market because here we can get things according to our choice and according to our need. So next is there equality in these market? I've told you that there are two types of products in the market, branded and non-branded. There is a huge demand of branded products. People feel confident while buying branded products because advertisements of the products are given by celebrities, favorite cricketers, जो भी होते हैं आपके. So that's why people prefer to buy things, branded products. They feel confident. They do not bother about the rate. Though they are expensive, people prefer to buy. There are other products made by local traders.
जिनके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है एंड देयर प्रोडक्ट्स आर नॉट, हम कहेंगे कि ब्रांडेड नहीं है, लोकल ट्रेडर्स के प्रोडक्ट. सो rich people or middle class people, they do not prefer to buy non-branded goods. They do not feel confident about the quality of the product. उनको लगता है क्वालिटी नहीं अच्छी होगी, नहीं उठाना ही. While buying branded product, they feel much confident about the quality of the product. उनको लगता है क्वालिटी अच्छी होगी because advertisement is given by शाहरुख खान, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन. एक सरफ आप लेने गए हो ना, एक लोकल है और एक घड़ी है. घड़ी 1 मिनट में उठा लोगे क्योंकि एडवर्टाइजमेंट अमिताभ बच्चन दे रहा है, तो हम इसलिए उसको खरीदते वक्त कहीं ना कहीं हमें लगेगा इट्स गुड. वेयर एज लोकल ट्रेडर का जो सर्फ है ना, हम उसको नहीं उठाएंगे, हमें लगेगा नहीं, मे बी क्वालिटी जो है ना वो अच्छी नहीं हुई. तो दैट्स वाई जो हम कहें कि जिनको प्रॉब्लम्स आती हैं वो कौन है, ट्रेडर्स. वो ट्रेडर्स, लोकल ट्रेडर्स, हम मोस्टली ये कहेंगे लोकल ट्रेडर्स हैव टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन द मार्केट्स, क्योंकि उनके प्रोडक्ट की कहीं ना कहीं डिमांड लेस है. So this is about the whole chapter. I have revised also and try to find out the question answers. And in next जो क्लास आएगी हमारी, I will